A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to start our new continue our chapter number 5, rights. In this chapter, today we will discuss about Universal Declaration of Human Rights. Okay. In the previous class, we discussed about our responsibilities towards rights. Whatever rights we have with us, we have responsibility to. Okay, and as a human being, we should follow those responsibilities. We should adopt those responsibilities and make our environment a suitable environment for everybody and for the coming generation. So, Universal Declaration of Human Rights. So, on 10th December 1948, the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights. 10th December 1948 को जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था, प्रोक्लेम किया था. Following this historic act, the Assembly called upon all member countries to publicize the text of the declaration and to cause it to be disseminated, displayed, read, and expounded principally in schools and other educational institutions without distinctions based on the political status of country or territories. Now, whoever the member countries of this यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज थे, यूनाइटेड नेशन ने ये प्रोक्लेम कर लिया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. एंड नाउ ये जो असेंबली बनी थी, उन्होंने अपने जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी, ठीक है, मेंबर कंट्रीज को बुलाया और एक टेक्स्ट पब्लिश किया, डिक्लेयर किया कि वी विल yes, to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded principally in schools and other educational institutions without distinctions based on the political status of countries or territories. उन्होंने कहा कि ये जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, हम सब मिलके एक ये शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं. उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ठीक है. डिसैमिनेटेड का मतलब होता है द एक्शन और फैक्ट ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग. वी विल स्प्रेड, वी विल डिस्प्ले, वी विल रीड, वी विल एक्सपाउंड. वी विल एक्सपाउंड मीन्स टू प्रेजेंट समथिंग इन डिटेल. ओके, हम प्रेजेंट करेंगे क्या, द प्रिंसिपली इन स्कूल्स एंड अदर एजुकेशनल, जो ये ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, वॉट एवर वी read in this chapter about the rights, about our responsibilities, about the different types of rights, we will promote it, we will display it, we will read it, we will present it very carefully and elaborately in schools, educational institution. चाहे हमारा कोई भी पॉलिटिकल स्टेटस हो किसी भी कंट्री का, चाहे वहाँ पे मिलिट्री रूल, अगर कोई मिलिट्री रूल वाली कंट्री है, ठीक है, चाहे वो मिलिट्री रूल हो, डिक्टेटरशिप हो, वन पार्टी रूल हो या डेमोक्रेटिक कंट्री ही क्यों ना हो, वी विल डिस्प्ले, वी विल प्रमोट ह्यूमन राइट्स, ठीक है. एंड दिस इज द ओथ टेकन बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. Now preamble, ठीक है, क्या था preamble? Whereas recognition of the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. This is the very first preamble का जो आप बोल सकते हो. What is preamble? It is the introductory page especially. तो human rights का भी जो ये preamble था, वहाँ पे क्या था कि dignity, every human is equal, we all are human beings and we all possess some dignity in us. तो हम
हर एक ह्यूमन बीइंग की जो डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. वी विल ट्रीट देम इक्वली एंड वी विल लाइक we will not and inalienable rights. Inalienable, what is the meaning of inalienable? Inalienable means something which is not subject to being taken away. हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे उनके पॉलिटिकल स्टेटस को लेके, उनके कलर को, उनके सेक्स को, उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेके. We will not taken away those countries or those members. So inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. ये मेन फाउंडेशन क्या है इन सबका? हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस है, इट इज कि हम एक ह्यूमन फैमिली है, हम डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते होंगे, डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेटस से बिलोंग करते होंगे, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट जेंडर से बिलोंग करते होंगे, बट वी ऑल आर ह्यूमन फैमिली. एंड ह्यूमन फैमिली का जो बेस है, जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, वो क्या है? फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड. एंड वी विल spread it. We will encourage the members of the countries, we will encourage the citizens of our countries to maintain these things. Whereas disregard and contempt of human rights have resulted in barbarous means cruel, barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief, and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. So now whereas disregard and contempt का meaning क्या होता है? contempt means disrespect. okay, so disregard and disrespect for human rights, अगर हम human rights को respect नहीं देते हैं, ठीक है, अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, देन उसका रिजल्ट क्या रहेगा? बहुत क्रूएल एक्ट्स होंगे, ठीक है, और वो बहुत क्रूएलिटी से स्प्रेड होंगे. मैनकाइंड का जो कॉन्साइंस है, ठीक है, मैनकाइंड के कॉन्साइंस में लोगों के अंदर जो है क्या होगा? वायलेंस जो है, वायलेंस आने लग जाएगा. And the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. और इस वर्ल्ड में जो कॉमन पीपल है, उनकी सबसे बड़ी एस्पिरेशन क्या रह जाएगी? फ्रीडम फ्रॉम फियर, लाइक freedom from fear, freedom of speech, freedom of belief, whatever. We all have these things, these freedom today. Okay, we all have these things in our country. But उन्होंने कहा if we disrespect human rights, इससे क्या होगा? cruel acts होंगे, और human beings का, common citizens की जो main aspiration क्या रह जाएगी कि वो freedom from fear और enjoy कर पाए freedom of speech, belief, etc. Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse as last as resort to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of the law. So ये जो preamble है, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी कहता है if man is not to be compelled to have recourse, ठीक है, compelled का मतलब क्या होता है? compelled का मतलब है force करना, to force someone to do something. if man is not to be compelled to have recourse, और recourse का मतलब यहाँ पे क्या है? recourse का मतलब हो गया जब हम किसी की हेल्प, डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी की हेल्प लेते हैं, उसको हम recourse बोलते हैं, ठीक है. So if man is not to be compelled to have recourse, अगर man को हम force नहीं करेंगे, like उसके अंदर हम ये वाली feeling develop नहीं करेंगे कि we have to help others in the difficult situation as a last resort to rebellion against any tyranny, कि हम किसी dominance के खिलाफ हम कोई protest करें, rebel करें, oppress करें, तो हमारे जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, वो किससे प्रोटेक्ट होने चाहिए? वो रूल ऑफ लॉ से प्रोटेक्ट होने चाहिए. ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. It is essential to promote the development of friendly relation between nations. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में ये भी कहा कि हमें डिफरेंट नेशंस के साथ क्या है?
फ्रेंडली रिलेशन को क्या करना है, डेवलप करना और इसको प्रमोट करना है। डिफरेंट कंट्रीज को हमें प्रमोट भी करना है, डिफरेंट नेशंस को, कि वी शुड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन डिफरेंट नेशंस। क्योंकि जो सिचुएशंस 1948 है उससे 1945 तक, 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका एंड हुआ था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और फिर बहुत सारी कंट्रीज जो है कॉलोनियल रूल में थी। तो जितनी भी चीजें देखी तो उसमें एक डिक्लेरेशन ये भी था कि वी शुड प्रमोट, वी शुड रिस्पेक्ट द सोवेरेनिटी ऑफ द डिफरेंट नेशन, वी शुड प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद डिफरेंट नेशन। ये उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव और था। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव इन द चार्टर reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, and in the equal rights of men and women, have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom. So now the peoples of the United Nations, they write it मतलब something, charter का मतलब क्या होता है, एक written grant होता है। जब आप किसी को कोई permission देते हो, ठीक है, तो it means you are giving someone grant, ठीक है, कि sovereignty से आप क्या कर रहे हो, ग्रांट दे रहे हो, रिटर्न ग्रांट दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो। तो जो यूनाइटेड नेशन के लोग थे उन्होंने क्या किया कि हमें ये जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उन पे पूरा फेथ है, ठीक है, हमें ह्यूमन बीइंग्स की वर्थ का, ह्यूमन बीइंग्स की डिग्निटी को हम रीअफर्म करते हैं, हम फेथ, टोटल फेथ रखते हैं। इक्वल राइट्स होने चाहिए मैन और वुमेन के लिए, और इक्वल, अगर मैन और वुमेन के पास इक्वल राइट्स होंगे तभी हमारी सोसाइटी की क्या हो पाएगी, प्रोग्रेस हो पाएगी, और हम एक अच्छी लाइफ क्या कर पाएंगे, अर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट, member states have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms। अब member states ने भी क्या है, pledge लिया कि हम जो भी हम क्या करेंगे, हम यूनाइटेड नेशंस के साथ कॉपरेट करेंगे, हम यूनिवर्सल रेस्पेक्ट को प्रमोट करेंगे, ठीक है, जितने भी ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल फ्रीडम है, उसको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ये एक कॉमन, ऑब्वियसली प्लेज लेने से, खाली प्लेज ले ली तो, और अगर किसी को वो कोई कंट्री से फॉलो नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है नेशंस के बीच में कि ये जो राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और हमें अंदर से, मतलब हमें दिल से इसको रियलाइज करना चाहिए और उसको मानना चाहिए। सो नाउ therefore the General Assembly proclaims this universal declaration of human rights। तो ये जितनी भी चीजें हमने अभी go through किया, ये सारी चीजें जो है universal declaration of human rights में mention की गई है, as a common standard of achievement for all people and all nations, to the end that every individual and every organ of the society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedom, and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of member states themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction। ओके, सो नाउ दिस जनरल असेंबली, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, जिन्होंने ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को प्रोक्लेम किया था, उन्होंने कहा था कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है, ये जितना जो भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसको हमेशा माइंड में रखेगी, रिस्पेक्ट करेगी हमारे राइट्स को, फ्रीडम्स को, और इसे प्रमोट करने के लिए टाइम टू टाइम जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो स्टेप्स लेंगी, जो भी मेजर्स लेने होंगे उसमें वो मेजर्स अडॉप्ट करेगी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं मेंबर स्टेट्स के, या फिर जितनी भी टेरिटरीज हैं,
उनके जुरिस्डिक्शन में आती है, वो क्या करेगी, इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को रिस्पेक्ट देगी, इक्वल रिस्पेक्ट देगी। ओके, सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या था उनका उनका कि वी विल recognize the dignity and equality of all the nations, especially the member states, and we all are the family. We all are the human family. So our main foundation is freedom, justice, and peace in the world. Secondly, we will not disrespect human rights, and if we disrespect human rights, it will result into the cruel acts. Okay, men will create violence in their mind, in their acts. But it is essential if man is not compelled to have recourse. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अगर मैन को हम क्या है प्रॉपर अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, और अगर हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे कि वी शुड रिस्पेक्ट द सोवेरेनिटी, वी शुड हेल्प डिफरेंट नेशन, डिफरेंट पर्सन्स, जब उनको उनके डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो हम ये जरूरी है उनको इस चीज को ऑब्लाइज कराना, नहीं तो क्या होगा, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्या है वायलेंट एक्ट्स होंगे, मेजोरिटी के जो टिरनी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, इसके खिलाफ हमें क्या है, जो भी डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, जो भी सिचुएशन हो रही है, इसके अगेंस्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, एंड ह्यूमन राइट्स को रूल ऑफ लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट करवाना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशंस जो है डिफरेंट नेशंस को, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। जितना भी यूनाइटेड नेशन के लोग हैं, उन्होंने रिटर्न ग्रांट दिया है, उन्होंने अपना फेथ जो है, फेथ रीअफर्म किया है, किस पे, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पे, कि वो जितने भी डिग्निटी है, वर्थ है ह्यूमन राइट्स के, ह्यूमन पर्सन्स के, उनके इक्वालिटी को, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, डिटरमाइन करेंगे एंड प्रमोट करेंगे सोशल, क्योंकि अगर हम इसे डिटरमाइन नहीं करेंगे, इक्वालिटी को डिटरमाइन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी सोशल प्रोग्रेस जो है नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हमने देखा कि यूनिवर्सल रेस्पेक्ट, ठीक है, जितने भी फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं उसको, स्पेशली जो मेंबर स्टेट्स हैं, वो क्या करेंगी, यूनाइटेड नेशन के साथ कोऑपरेट करेगी, प्रमोट करेगी यूनिवर्सल रेस्पेक्ट को। नेक्स्ट, understanding of these rights and freedom is of greatest importance for full realization of this pledge। और हमें इसे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखनी है, मेंबर स्टेट्स को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हमें ये जो राइट्स हैं, फ्रीडम है, ये बहुत important रोल प्ले करती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। Go through this topic, and if you face any problem, do let me know. So we have completed this chapter, and in this chapter we have seen different kinds of rights, different our responsibilities towards rights, and we have seen theorist Immanuel Kant, German फिलोसफर इमैनुअल कैंट, उन्होंने भी ह्यूमन डिग्निटी पे जो बोला, वो चीजें हमने देखी। लीगल राइट्स क्यों होने चाहिए, हमारे राइट्स कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी so thank you so much for joining the class. This is all about today. Bye bye.